Hello students, today's topic will be megasporogenesis. In the previous lecture, we have already discussed about the microsporogenesis, the structure of the pistil, megasporangium and the embryo sac. And the last part of the lecture was the structure of the ovule. Now today we will start with the formation of the megaspores, that is the megasporogenesis. From the part only, from this line only, you can see that megasporogenesis is the production of the spores which are megaspores, larger one. So formation of megaspores from the megaspore mother cell is called what? Megasporogenesis. Okay, so megaspore mother cell, they will form what? Megaspores by the process of megasporogenesis. And ovules will differentiate a single megaspore mother cell in the micropylar region of the nucellus. So it is a large cell which will contain the dense cytoplasm and the nucleus. There will be a cytoplasm and the nucleus in the cell. And how many megaspores will be formed? 4. So in the previous lecture we have seen that what? This microspore tetrad formation. Here also megaspore is in the group of 4. So megaspore mother cell will undergo meiosis. You have to understand this part, that this will undergo meiosis to form the megaspores. So what are these megaspores? They will be always what? Haploid. So we can represent the chromosome number by N. Clear? Next we come to the female gametophyte. What is this female gametophyte? Do you remember what is this female gametophyte? This is the embryo sac. So what happens here? You can see here there is one functional megaspore, and out of this 4, 1 is functional and 3 will degenerate slowly. मतलब एक जो 4 जो मेगास्पोर फॉर्म हुआ है उसमें एक फंक्शनल है और जो 3 है वो धीरे धीरे खराब हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, उसका कोई यूज़ नहीं है. ठीक है. सो मेगास्पोर मदर सेल will give rise to what? Megaspores, and out of that 1 will be functional and 3 will degenerate. This is the basic thing. And next is the female megaspore, or the functional megaspore is also called the female gametophyte. Those 1 functional megaspore, this one, 3 तो खराब हो गए हैं, 1 बाकी है, which is called the functional megaspore. This F megaspore means the functional megaspore or the female gametophyte, and it is also called what? The embryo sac. Okay, so the single megaspore will form what? The embryo sac. What is this? The functional megaspore. Where are the other 3? They degenerate. How many were formed? 4. कितना फॉर्म हुआ था? 4. उनमें 3 खराब हो गए, 1 है, और 1 क्या फॉर्म हो रहा है? Functional megaspore is also called female gametophyte. It is also called what? Embryo sac. ठीक है. सो एक सिंगल मेगास्पोर will develop into the female gametophyte. That is why this type of embryo sac formation from a single megaspore is called monosporic development. क्यों monosporic? Mono means single. So from single megaspore, बाकी 3 नहीं है, उससे एक embryo sac हो रहा है, इसीलिए इस formation का नाम क्या है या development का नाम क्या है? Monosporic development. Okay, so if the definition is what is monosporic development, so you will say that when the single megaspore is formed into the embryo sac, that is called what? Monosporic development. Why mono? Because only single megaspore, 1 megaspore will develop the functional one. Okay, now we'll come to the ploides. So you know what is the nucellus? The embryo sac is there and outside there is the nucellus. So इसका function क्या है? This will provide the nutrients to the growing embryo. So this will have the diploid condition 2n. Then the megaspore mother cell, which will later develop into megaspore, will also have what? The diploid condition, because this megaspore mother cell will undergo meiosis. This is reductional division. So what about the functional megaspore? This will be haploid, because megaspore mother cell
meiosis से फिर functional megaspore form किया है तो that will be haploid. And what about the female gametophyte? This functional megaspore only develops into female gametophyte, so this will be same. So ploidy of Nucellus is diploid, megaspore mother cell is diploid, functional megaspore is haploid, and female gametophyte is haploid. Is it clear now? और मेगास्पोर फंक्शनल जो है वही फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाता है. क्लियर? सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? मेगास्पोरोजेनेसिस. नाउ वी कम टू द स्टेप वाइज फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रायो सैक. हाउ द एम्ब्रायो सैक इज फॉर्म्ड. एम्ब्रायो सैक कौन सा? फीमेल गैमेटोफाइट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एम्ब्रायो सैक. सो न्यूक्लियस, फंक्शनल मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस है ये माइटोटिकली डिवाइड होगा. ओके, एंड दे विल फॉर्म 2 न्यूक्लियट एम्ब्रायो सैक. फर्स्ट अच्छी तरीके से फोकस करना पड़ेगा इधर. द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर, एक न्यूक्लियस जो फंक्शनल मेगास्पोर में है वो क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन, दैट इज नॉट रिडक्शनल, सिंपल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, क्रोमोसोम नंबर का कोई चेंज नहीं, कुछ नहीं होगा इधर. तो 1 न्यूक्लियस विल गिव राइज टू 2 न्यूक्ली. अब ये 2 न्यूक्ली क्या होगा? दोनों पोल्स में चले जाएंगे. नाउ आई विल शो यू डायग्रामेटिकली हियर. सपोज दिस इज द फंक्शनल मेगास्पोर. यहाँ पर न्यूक्लियस है, दैट विल डिवाइड इनटू 2. ठीक है, अब 1 न्यूक्लियस डिवाइड इनटू 2, देन विल फॉर्म 2 न्यूक्ली विच माइग्रेट टुवर्ड्स द 2 पोल्स. 1 nucleus divides into 2 and migrate towards the 2 poles. So this forms what? 2 nucleate embryo sac. अब इतना यहाँ पर कितना न्यूक्लियस है? 2 nucleate. Okay. Further divisions, 2 more mitotic nuclear division will form 4 nucleate stage. अब यहाँ पर करने का कोशिश कर रहे हैं 4, 1, 2, 3, 4. Okay. And 2 more, again that will become what? 8 nucleate stage. So यहाँ पर जितना डिविजन्स हो रहा है सब माइटोटिक स्टेजेस 2-2 करके 2-2 करके आगे जा रहे हैं. सो 2 न्यूक्लियट स्टेज एम्ब्रायो सैक, देन 4 न्यूक्लियट स्टेज एम्ब्रायो सैक, देन 8 न्यूक्लियट स्टेज एम्ब्रायो सैक. अब इस दौरान जब न्यूक्लियर डिविजन हो रहे हैं तब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस होता है, दैट इज द सेल वॉल फॉर्मेशन इज not functional in these stages. While the nucleus is dividing into further and further, that is 2 to 4, 4 to 8. During this process, the cell wall formation is not followed immediately after this nuclear division. तुरंत बाद जो सेल वॉल फॉर्मेशन होना था वो नहीं होता है. तो सेल वॉल फॉर्मेशन तुरंत नहीं होता है, धीरे धीरे होगा. 8 न्यूक्लियट स्टेज में पहुंचा है, उसके बाद धीरे धीरे सेल वॉल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा. मतलब 2 न्यूक्लिएट, 4 न्यूक्लिएट, 8 न्यूक्लिएट हुआ, उसके बाद सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा. अब सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे सेल वॉल्स लेड हो जाएंगे. एंड टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन अभी 8 न्यूक्लिएट स्टेज, जहाँ पर सेल वॉल्स फॉर्म हो जाएंगे न्यूक्लियस के बाहर. ठीक है, दिस स्टेज इज कॉल्ड द फीमेल गैमेटोफाइट और द एम्ब्रायो सैक. अब जब सेल को अच्छी तरीके से हम लोग ऑब्जर्व करेंगे एम्ब्रायो सैक में या फीमेल गैमेटोफाइट में, तब क्या देखा जाएगा? जो 8 न्यूक्ली फॉर्म हुआ है उसमें से 6 जो है उसमें सेल वॉल्स होंगे. ठीक है, जो 8 न्यूक्ली फॉर्म हुआ है उसमें से 6 न्यूक्ली जो है उसमें सेल वॉल होंगे और प्रॉपर सेल हो जाएंगे. जैसे कि एक न्यूक्लियस और उसके बाहर सेल वॉल, तो ये क्या हो गया? एक सेल, प्रॉपर सेल विद सेल वॉल. सो 6 न्यूक्ली जो फॉर्मेशन हुआ है उसके बाहर का वॉल फॉर्म हो जाएगा. सो दैट विल फॉर्म अ कॉमन सेल. और जो 2 रह जाएंगे, जो 2 रिमेनिंग है, विच विल बी कॉल्ड एज द पोलर न्यूक्ली. ठीक है, जिसमें वॉल्स नहीं होंगे. सो 2 रिमेनिंग न्यूक्ली है कॉल्ड व्हाट? पोलर न्यूक्ली. ये कहाँ पर होगा? सेंट्रल सेल के बीच में. जो बड़ा वाला मेन सेल है उसके बीच में क्या देखा जाएगा? 2 पोलर न्यूक्ली विच कैनॉट बी कॉल्ड अ सेल, दे विल बी फ्लोटिंग ऑन द लार्ज सेंट्रल सेल. ओके, सो ये प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से ध्यान देना पड़ेगा. 8 न्यूक्लियट स्टेज है, तो जिसमें 6 न्यूक्ली का सेल वॉल फॉर्मेशन होगा, तो ये प्रॉपर एक
6 जो है सेल के हिसाब से देखा जाएगा। बाकी का जो 2 है, ये 2 मतलब लार्ज जो मेन सेल है उसमें फ्लोट करता हुआ दिखाई देगा, उसके बीच में होगा, उसका कोई सेल वॉल नहीं होगा। ठीक है, जस्ट इन द सेंट्रल सेल बिलो द एग apparatus विल बी द 2 polar nuclei. Okay, so this are the stepwise formation of the embryo sac. इसी तरह से एम्ब्रियो सैक धीरे धीरे अपना प्रॉपर्टीज बनाता हुआ आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। एंड नेक्स्ट वी कम टू द कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स विद इन द एम्ब्रियो सैक। हाउ द सेल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द एम्ब्रियो सैक। कैसा सेल्स जो फॉर्म हुआ है 8, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये यहाँ पर देखा जाएगा इन दिस टॉपिक। सो नंबर यू कैन सी 3 सेल्स। जो 3 सेल्स हैं वो माइक्रोपाइलर एंड में अरेंज हो जाएंगे। माइक्रोपाइलर एंड याद है जो हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया था, माइक्रोपाइल ओपनिंग, जो खाली जगह होगा, इंटीग्यूमेंट्स होंगे न्यूसेलस, उसके बाहरी हिस्से में इंटीग्यूमेंट्स, और जो जगह पर खाली होगा वो जगह का नाम क्या है, माइक्रोपाइल। उसी एंड का, उस तरफ का जगह का नाम क्या है, माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, जो 3 सेल्स होंगे वो माइक्रोपाइल एंड में अटैच्ड हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एग apparatus। वो जो 3 सेल्स है माइक्रोपाइल एंड में चले जाएंगे, उनका क्या बोलेंगे नाम, एग apparatus। ठीक है, उसमें से 2 सिनर्जिट्स, 2 सेल्स का नाम होगा सिनर्जिस्ट, और एक सेल का नाम होगा क्या, एग सेल्स। ओके, सो एग apparatus में कितना सेल्स, 3, जिसमें से 2 का नाम क्या है, सिनर्जिट, और एक का नाम क्या है, एग सेल। ठीक है, सो ये तीनों मिलके क्या होता है, एग apparatus, बिकॉज इज कंटेन व्हाट, द एग सेल। अब जो अपोजिट साइड है माइक्रोपाइल का अपोजिट कौन सा है, याद है, चालाजा। सो चालाजा एंड में जो 3 सेल होंगे उसका क्या नाम है, एंटीपोडल्स। सो 3 cells consists of the antipodals and 3 will be present in the egg apparatus, where 2 cells are called synergids and 1 is called the egg cell. So micropylar end में कौन सा apparatus, egg apparatus। उल्टा साइड में कौन, चालाजा पोल में एंटीपोडल्स। ओके, एक सेल का यहाँ पर ज़्यादा काम है क्योंकि मेल गैमेट्स को आके एक के साथ मीटिंग करना पड़ेगा, तभी जगह फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। तो एग सेल इज प्रेजेंट इन द एग apparatus। तो पोलन्स को कहाँ जाके मीट करना पड़ेगा, एग सेल में। ठीक है, एंड इन द सिनर्जिड्स there are certain apparatus which are called what, filiform apparatus, which will give the direction to the pollens to go to the egg cell. So what we can say here that there are 6 cells. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि 6 सेल था, जिसमें हम लोग सेल क्यों बोलेंगे कि न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस में बाउंड्रीज होंगे, सेल वॉल फॉर्मेशन। सो 3-3 करके अरेंज हो जाएंगे 2 पोल्स में, एंड वन इज इन द माइक्रोपाइलर एंड और दूसरा है चालाजाल एंड, एग apparatus एंड एंटीपोडल्स। ठीक है, 3-3 करके। ठीक है, और अभी जो सेंट्रल सेल है जिसमें हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है कि 2 पोलर न्यूक्लिय वहाँ पर रहेंगे जिसमें सेल वॉल नहीं है। तो कितना सेल हो गया टोटल, अभी इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। हाँ, 8 न्यूक्लियट स्टेज है, 8 न्यूक्लिय फॉर्मेशन हुआ था पहले ही, तो न्यूक्लियस कितना और न्यूक्लिय कितना, 8। हाँ, लेकिन अभी कितना सेल स्टेज है, ये 3 और एक लार्ज सेंट्रल सेल। सो हाउ मेनी सेल, 3 + 3 6 + 1 is 7. So this is a typical characteristic feature or the structure of the embryo sac after maturity, which will have 8 nucleate stage and 7 cell stage. 8 nucleate and is also 7 celled. यहाँ पर 8 cell नहीं है. Okay. So I hope it is clear now. Now I will show you the diagram from the book also once again so that it will be clear to you. Now as you can see in the diagram here, you can see this is the megaspore mother cell, this is the nucellus and this is the micropylar end. Cell division process is going on. Here megaspore dyad 2 cell हुआ है, nucellus दिखाई दे रहा है, this is micropylar end. Here 4 cells का formation है, 1 2 3 4. megaspore tetrad, मैंने अभी बोला था कि how many cells will be formed during this megasporogenesis, 4. So tetrad है ये भी. फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, 2, उसके बाद माइटोसिस, फिर 4, उसके बाद फिर रिपीटेड माइटोसिस एंड उसके बाद 8 न्यूक्लियट स्टेज. Just now I told you this. Now what happens, this nuclei are formed because 2 to 4, 4 to 8 without the formation of the cell wall. Cell wall का कोई formation नहीं है.
Next is the formation of the cell wall. The nuclei are arranged and then what happens, you can see cell धीरे धीरे फॉर्म हो रहे हैं. सेल वॉल हो रहा है तो इसलिए सेल बोला जाएगा. सेंट्रल सेल है ये बीच का, उसमें क्या दिखाई दे रहा है, 2 पोलर न्यूक्ली है जिसके बाहर कोई वॉल्स नहीं है. तो 2 पोलर न्यूक्ली इन द सेंट्रल सेल और ऊपर एक सेल और साइड्स में क्या दिखाई दे रहा है, सिनर्जिड्स. सो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हम लोग क्या देख सकते हैं कि सिनर्जिड्स विद द एग एपरेटस और उल्टा साइड में चालाजाल पोल की तरफ उसको क्या देखेंगे, एंटीपोडल्स. ठीक है, अभी पूरा अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया है एंड मैच्योर एम्ब्रायो सैक हो गया है जहाँ पर क्या देख सकते हैं, चालाजाल एंड में एंटीपोडल्स. ठीक है, हमेशा माइक्रोपाइलर एंड में ही एग एपरेटस होगा. तो ये अरेंजमेंट जो है एग एपरेटस का, 2 सिनर्जिड्स उसके साथ एक एग सेल, 2 polar nuclei in the central cell. This I told just now filiform apparatus जो रास्ता दिखाएगा पोलन को, मतलब मेल गैमेट को, to migrate towards the egg cell. So these are the filiform apparatus. So I think that you have understood this diagram also, and just try to practice these diagrams properly. In the next lecture we will discuss about the process of pollination.